विद्यार्थी मित्रों, આજના આપણા આ વિડીયોની અંદર આપણે પાઠ નંબર ન્યાય મંત્રી જે છે એને આગળ જોઈશું। એની પહેલાં આગળ જે પહેલા વિડીયોમાં તમે જે જોયું હતું તે એક વખત પુનરાવર્તન કરી લઈએ કે ન્યાય મંત્રી પાઠની અંદર જે છે એ મુખ્ય પાત્ર જે છે એ કેટલા છે? બે, એક શિશુપાલ છે અને બીજા સમ્રાટ અશોક છે। તો બંને મિત્રો જે છે અરે બંને જે પાત્રો છે આ બંનેનો સંવાદ જે છે એના જ આધારે આખી કહાની જે છે એ ચાલે છે। એના લેખકનું નામ પણ આપણે જોયું હતું કે શ્રી સુદર્શન છે। એમનું મૂળ નામ વાસ્તવિક નામ શું છે? બદ્રીનાથ શર્મા, બરાબર। અને ન્યાયમંત્રી પાઠનો સાહિત્ય પ્રકાર કહાની છે। હવે શિશુપાલ જે છે અહીં પોતાના ઘરે જ્યારે હોય છે તો સમ્રાટ અશોક જે છે એ પોતાને કોઈ સાચો ન્યાય મંત્રી જે છે એની શોધ કરવા માંગતા હોય છે। તો એ કઈ રીતે શોધે છે? તો એ ગુપ્ત વેશે નગરચર્યા માટે નીકળે છે અને એ શિશુપાલના ઘરે જાય છે। હવે શિશુપાલના ઘરે તો કોઈ યુવક આવેલો છે। શિશુપાલને આ વાતની ખબર નથી કે એ સમ્રાટ અશોક પોતે જ છે। હવે ત્યાં આપણે જોયું હતું કે શિશુપાલના ઘરે યુવક આવે છે અને યુવક જે છે એના ઘરની અંદર રહે છે ત્યારે બંને એ સમયે જે નગરની અંદર રાજ્ય વ્યવસ્થા ચાલતી હતી એની ચર્ચા થતી હોય છે અને ત્યાં સાચો ન્યાય શેને કહેવાય અને કેવો હોવો જોઈએ એની ચર્ચા ચાલતી હોય છે। ત્યારે સમ્રાટ અશોક જે છે એ યુવક રૂપે સામે એને કહે છે કે અહીં ન્યાય જે છે અત્યારે જે ચાલે છે તે બરાબર જ છે, પરંતુ અહીં જે શિશુપાલ જે છે એ કહે છે કે આ ન્યાય જે છે એ સાચો ન્યાય છે નહીં। જો મને કોઈ અવસર મળે, મને જો મોકો મળે તો હું સાચો ન્યાય શેને કહેવાય એ હું બતાવી દઉં, દેખાડી દઉં। આટલે સુધી આપણે જોયું હતું। હવે એનાથી આગળ આજે જોઈએ। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। तब युवक ने कहा, तो आप अवसर चाहते हैं? तब शिशुपाल ने कहा, हाँ अवसर चाहता हूँ। फिर युवक ने कहा, फिर कोई अन्याय नहीं होगा? शिशुपाल ने कहा, बिल्कुल नहीं। सम्राट અહીં तो फिर यहाँ युवक जो सम्राट अशोक है वह युवक कहता है, कोई अपराधी दंड से न बचेगा? तब शिशुपाल कहता है, नहीं। तब परदेसी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है, आसान नहीं है। तब शिशुपाल कहता है कि ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। बात सही है कि ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन काम नहीं हो सकता। इस प्रकार वह ब्राह्मण की प्रतिभा का भी हमें यहाँ परिचय मिलता है। जे ब्राह्मण હોય છે એ શ્રેષ્ઠ ગણાય છે, એનું કાર્ય જે છે ઉત્તમોત્તમ છે। એટલા જ માટે કદાચ પહેલાં જ્યારે વર્ણાશ્રમ જે છે એ આપવામાં આવેલા હતા, બરાબર, કે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર, તો સૌથી શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણોના કાર્ય સોંપવામાં આવેલું હતું કે કર્મકાંડનું કાર્ય કરવું અને વિદ્યા આપવાનું કાર્ય કરવું। તો વિદ્યા આપવાનું કાર્ય જે છે એ શ્રેષ્ઠ વ્યક્તિ જ કરી શકે, જેની અંદર પોતાનામાં જે વિદ્યા હોય, પોતાનામાં જ્ઞાન હોય એ બીજાને આપી શકે। બાકી પોતાનામાં જો અજ્ઞાન ભરેલું હોય તો એ બીજાને સાચું જ્ઞાન આપી શકતો નથી, બરાબર। પણ આજે આપણે જોઈએ તો જે કંઈ કાર્ય જે છે એ અનેક રીતે, કોઈ રીતે સારી રીતે પણ થાય છે અને કોઈ રીતે કદાચ ખરાબ રીતે પણ થાય છે, બરાબર। ઘણા એક રીતે જે બ્રાહ્મણ જે હોય છે એ કર્મકાંડનું કાર્ય પણ કરે છે અને કોઈ જગ્યાએ અન્ય વેપાર ધંધા પણ કરે છે, મતલબ કે વિદ્યા આપવાનું કાર્ય કરે। અને જનરલી અત્યારે કોઈ વર્ણાશ્રમ રહેલો નથી, કોઈ પણ શૂદ્ર જે હશે એ પણ કદાચ સારી કોઈ મતલબ કે વિદ્યા આપવાનું કાર્ય પણ કરશે, અથવા તો એ પણ ગમે તે પ્રકારે ક્ષત્રિયની જેમ મતલબ કે પોલીસની અંદર ભરતી પણ થશે કે ગમે તેમ। અત્યારે કોઈ વર્ણાશ્રમ જોવા મળતો નથી। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। परदेसी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए।
सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए यानी कि डर जाते हैं, घबराई गया। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी कि અહીં ઓલો જે મારા ઘરે નવયુવક આવ્યો હતો એ પરદેશીને મેં એક રાત મારા ઘરમાં રાખ્યો હતો, તેની સાથે મેં જે રાજ્યની અંદર જે કંઈ વ્યવસ્થા ચાલે છે એની ચર્ચા કરી હતી, તો એણે સાચી કે ખોટી કોઈ ફરિયાદ તો નહીં કરી દીધી હોય, એ વાત કહી તો નહીં દીધી હોય સમ્રાટને, કદાચ એની સજા આપવા માટે મને બોલાવતા હશે। આમ એના મનની અંદર અનેક વિચારો ચાલતા હોય છે। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक है। कि જ્યારે રાજ દરબારમાં અહીં પહોંચે છે સમ્રાટ અશોક સિપાહીઓની સાથે, ત્યારે જઈને જુએ તો હૃદયના ધબકારા જે છે એ વધારે થઈ જાય છે, વધી જાય છે, મતલબ વધારે પડતો ગભરાટ થવા લાગ્યો, चिंता વધી ગઈ। કેમ કે જે એના ઘરે परदेशी के नवयुवकना रूपे जे आव्या हता ए पोते ज सम्राट अशोक हता। हवे सामे सिंहासन पर बैठेला सम्राट अशोकने जोईने अहीं शिशुपाल जे छे खूब ज डरी जाय छे। केम के आपणे अजाणता कोईना सामे तो कंई ना कही शकीए, आम भले कहेता होय पण सामे कहेवानी आपणने हिम्मत चालती नथी, पण जे सत्य होय तेने जो आपणे कहेवुं होय तो गमे तेनी सामे कही शकीए छीए। बराबर। शिशुपाल जे छे ते भले आम एने अजाणता कहेलू है, परंतु हवे तो एने मौको मळ्यो छे, तो हवे ए पोते कई रीते पोताना ब्राह्मण होवानी शक्ति देखाड़े छे ते जोवा मळशे आपणने। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए। सम्राट अशोक ने भी घोषित कर दिया कि बहुत ठीक, तो फिर आप कल से न्याय मंत्री हुए, काल थी तमे न्याय मंत्री। सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी, यानी कि न्याय मंत्री होने की निशानी। जो राजमुद्रा है वह अब किसके हाथ में चली गई? सम्राट अशोक के हाथ से निकलकर शिशुपाल के हाथ में चली जाती है, वह पहन लेता है। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। हवे न्याय मंत्री कौन थई गयुं? शिशुपाल। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। समुचित यानी कि सुयोग्य, सारी, बराबर, सुंदर व्यवस्था करवानुं शरू करी दीधुं। एने ज्यां कंई सुधारा वधारा लागता हता ते एने करी नाख्या पोतानी रीते। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। अहीं शिशुपालनी सारी व्यवस्था थी चारे बाजू शांति फैलाई गई, एनी वाहवा थवा लागे छे। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था, लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। चारे बाजू एनी सारी व्यवस्था, मतलब के न्याय मंत्री तरीके शिशुपाल जे छे ई ज्यारे आवे छे तो चारे बाजू एने जे व्यवस्था करी थी व्यवस्थानी अने एना राज्य शासननी, मतलब कि जे कंई वहीवट करतो तो एनी धूम मची जाय छे, मतलब के एना वखाण थवा लागे छे। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। रात दिन एक कर देना यानी कि किसी भी समय का भान न रहना, कोईपण समय थाय एनु कोई भान न रहेवुं, बराबर। अने रात दिवस बधुं एक करी नाख्युं, 24 कलाक
राते के दिवसे ज्यां सुधी अपराधी न મળે ત્યાં સુધી शांति બેસવું नहीं, चैन से नहीं बैठना और खाना पीना भी छोड़ दिया। शिशुपाल ने एक न्याय मंत्री के रूप में है, इसलिए अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। बहुत प्रयत्न के बाद घણા બધા પ્રયત્નો કર્યા બાદ અહીં अपराधी કોણ છે તેની ખબર પણ પડે છે, પણ આ વાત જાણીને શિશુપાલને એક આશ્ચર્ય થાય છે, નવાઈ લાગે છે। आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। स्वयं सम्राट अशोके ज એ પહરેદાર જે છે સૈનિક સિપાही એની હત્યા કરી હતી, એને મારી નાખ્યો હતો। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत कठिन ही बहुत ही कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। हवे અહીં एक मुश्किल काम एना माटे आवी जाय छे के अपराधी जे छे एने सजा करवी ए न्याय मंत्री तरीके एनी फरज छे, परंतु हवे अहींया अपराधी जे छे ए पोते कोण छे? सम्राट अशोक। हवे एने सजा करवी तो कई रीते करवी? राजा छे, हवे ए सम्राट अशोके पोताने न्याय मंत्री बनाव्यो छे। हवे जेणे न्याय मंत्री बनाव्यो छे एने पोते सजा संभळावी आ शुं योग्य छे? हवे અહીં એના માટે એક ધર્મ સંકટ આવી જાય છે કે એક તરફ પોતાને જે ન્યાય મંત્રી બનાવનાર રાજાને સજા સંભળાવી અથવા તો પોતે સાચો ન્યાય કરશે અથવા તો ન્યાય બતાવશે, આવો જે એને એક વાયદો કર્યો હતો, બરાબર, કે પોતે પોતાની શક્તિનું પ્રદર્શન કરતો હતો કે ના, હું એક બ્રાહ્મણ છું અને બ્રાહ્મણ માટે કોઈ કામ મુશ્કેલ હોતું નથી, સાચો ન્યાય છે ને કહેવાય એનો ડંકો બજાવી દઈશ। હવે જો એક તરફ પોતે સાચો ન્યાય કરવાનો છે તો સાચો ન્યાય કરવા માટે રાજાને સજા કરવી જોઈએ, અને જો રાજાને સજા કરે તો પોતાને જે ન્યાય મંત્રી બનાવનાર છે એની સાથે કદાચ દગો થાય। પણ હવે શું કરે છે? એક તરફ રાજા જે છે એનો વિચાર કરવાનો છે અને એક તરફ એને સાચા ન્યાયનો વિચાર કરવાનો છે કે સાચો ન્યાય કરવો કે ન કરવો, કે પછી રાજાને બચાવવો। હવે શું કરે છે જોઈએ આગળ। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक ओर वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट अशोक के सेवक थे, परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। साचो न्याय जे छे तो साचो न्याय ज्यारे करवामां आवे तो सम्राट अशोक होय, मतलब के राजा होय के कोई पण प्रजा, कोई सामान्य व्यक्ति होय, एमां कोई ज अंतर होतुं नथी। न्याय जे छे हमेशा साचो न्याय करवामां कोई भेदभाव राखवामां आवतो नथी। न्याय ए न्याय छे, कोई अंतर नहीं होता। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? कि अपराधी कौन से एनी खबर पड़ी। अहीं सम्राट अशोक जे छे शिशुपाल ने पूछे छे। न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। तब सम्राट अशोक ने कहा, तो फिर उसे उपस्थित करो। तब यहाँ न्याय मंत्री कुछ रुके, थोड़ी वार माटे शिशुपाल रोकाय छे अने पछी कहे छे, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले। उच्च अधिकारी न्याय मंत्री जे छे राज्यनो उच्च अधिकारीनुं नाम जे शुं हतुं? धनवीर। संकेत करते हुए बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। अब यह संकेत जो है वह न्याय मंत्री ने शिशुपाल ने किसकी ओर किया था? सम्राट अशोक की ओर, और धनवीर को आज्ञा दी कि इसे तुम गिरफ्तार कर लो, यानी कि सम्राट अशोक को गिरफ्तार कर लो। संकेत सम्राट की ओर था। दरबार में निस्तब्धता छा गई। आखा दरबारनी अंदर शांति फैलाई जाए छे। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। અહીં सम्राट अशोक जे छे घणा बधा क्रोधित थई जाय छे के एक सामान्य व्यक्ति पोतानो सेवक
જેને 1 દિવસ કે 2 દિવસ થોડા સમય માટેનો ન્યાયમંત્રી બનાવવાનો હોય એ પોતાને જ સજા સંભળાવશે। હવે આનાથી પોતે क्रोधित પણ થઈ જાય છે। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस! न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही न हो। અહીં सम्राट अशोक पोते क्रोध व्यक्त करे છે અને ઉતાવળા અવાજે કહે છે कि इतना साहस, लेकिन न्याय मंत्री जो शिशुपाल है उस पर इस बात का कोई असर होता नहीं, हम यानी कि इसकी कोई असर नहीं होती, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर दूसरे ही क्षण यहाँ वह फिर अपने शब्दों को दोहराता है। न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया कि कुछ सुना ना हो और फिर दोहराता है। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो, चलो चलो गिरफ्तार कर लो सम्राट को। फिर दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट ऊँट काट कर रह गए, ते विचार में पड़ी जाए छे। और न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? तब सम्राट कहता है, हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर उद्दंड था। उद्दंड यानी कि अविवेकी, ते योग्य व्यक्ति हतो नहीं, ते सिपाही हतो ते खराब हतो। वह उद्दंड था, अविवेकी था, सम्राट का उत्तर था। तब वह उद्दंड था या नहीं, यह शिशुपाल कहता है न्याय मंत्री कि वह उद्दंड था या नहीं, तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। सभा में सन्नाटा छा गया। सन्नाटा छा जाना मुहावरे के लिए कि चारों ओर शांति फैल जाना। सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। जो सम्राट अशोक को सच्चे न्याय मंत्री की खोज थी, वह खोज यहाँ पर उनकी पूरी होती है कि परीक्षा में वह तो सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। आवो साचो न्याय संभळावे, मतलब के राजा जेवा राजाने पण ई बख्शतो नथी, एने पण नथी जवा देतो। तो आवो न्याय मंत्री होवो जोईए। आ शिशुपालना आ न्यायने सांभळीने एने भले पोताने सजा थई पण आने मेळवीने पोते राजा सम्राट अशोक खुश थई जाय छे। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है। અહીં આ તમારે પ્રશ્નની અંદર પણ પૂછી શકે કે શાસ્त्रों में राजा को किसका रूप माना गया है, तो ईश्वर का। कि शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। कि सच्चा न्याय किसे कहते हैं, उस सच्चे न्याय को देखने के लिए एक सच्ची शिक्षा मिले, इसलिए सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दो और राजा को चेतावनी देकर छोड़ दो। उसी प्रकार यहाँ शिशुपाल एक प्रकार से सम्राट अशोक का बचाव भी करता है, मतलब कि सम्राट अशोक ने बचावे पण छे, एनो जीव पण बचावी लीधो अने बीजी तरफ एक साचो न्याय पण करी बतावे छे। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा,
आपने मेरी आंखें खोल दी है, आपका साहस प्रशंसनीय है, यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। કે એક સામાન્ય વ્યક્તિ પણ રાજાને સાચું ભાન કરાવી શકે છે, સાચી સમજ આપી શકે છે। बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। ન્યાયમંત્રી નિરુત્તર હો ગયે। અને પછી જ્યારે અહીં શિશુપાલ જે છે પોતાની રાજમુદ્રા સમ્રાટ અશોકને પાછી આપવા માંગે છે કે આ ન્યાયમંત્રી તરીકેનું કાર્ય હું કરી શકીશ નહીં, પણ એવા સમયે ન્યાયમંત્રી તરીકે કાર્ય કરી શકવા માટે યોગ્ય વ્યક્તિ હોય તો એ શિશુપાલ જ હતો। સમ્રાટ અશોક આ વાત કરે છે અને પછી ન્યાયમંત્રી તરીકે હંમેશા માટે કોને રાખે છે? શિશુપાલને। અહીં આપણો આ પાઠ જે છે ન્યાયમંત્રી કહાની એ થાય છે પૂરી।